work for it. So today we are going to start our one of the most important topic, that actually is Python dictionary. It is very important because whenever you needed to work for two dimensional data having the row and column, अभी तक जो आपने लिस्ट में पढ़ी है, that actually based on series, that means one dimensional data. We can also perform two dimensional operation over the list, but it is more accurate or more useful than other data type. So what actually it have, first we are going to discuss. First thing, Python dictionary is a data structure in Python where it always used as dictionary as dixt, dict dixt, where it always contain its element in pair of open curly braces and close curly braces. ठीक है, लिस्ट में आपने पढ़ा था बिग ब्रैकेट, यहाँ पे थोड़ा चेंज हो गया. ठीक है, we always need to use pair of big curly braces, that is open curly braces and close curly braces. Here whenever we needed to store some set of data, we need to use only two basic property, that is called, first one that is called key. This is the key, name is the key, and jara is the value. So these two are most important whenever you are working with dictionary. अब जैसे आप अगर लिस्ट में काम करते थे तो लिस्ट का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग था. लिस्ट में कॉन्सेप्ट आपका था, मैं इसको लाइव करके दिखाता हूँ. वेयर इज द, थोड़ा सा बैक आ जाते हैं हम लोग, और कहाँ गया मेरा वन नोट. या वन नोट खुल रहा है, वेट कर लेंगे हम लोग. तो बेसिकली in dictionary we only have to focus over only two part. First one is key and second one is value, where keys and value are assigned together with the help of the term that is called colon symbol. आप यहाँ पे जितने भी एग्जांपल्स देखोगे सब में ये रिक्वायर्ड है, हर जगह आपको इसी तरीके से इस्तेमाल किया जाता है. इसके अलावा इसमें नंबर ऑफ ऑपरेशंस हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं जब इसकी जरूरत पड़ेगी. मैं वन बाय वन इसको बताऊंगा कि कैसे हम लोग इस पे काम करते हैं. वेट, चलो के मैं चला आता हूँ यहाँ से क्लास 11 में, और ये तो मोर ऑन ये था पॉइंट हमारा. एक और पेज ऐड कर लेता हूँ. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट डिक्शनरी इन पाइथन. तो बेसिकली पाइथन में डिक्शनरी क्या है? बेसिकली पाइथन में डिक्शनरी एक तरह का डेटा स्ट्रक्चर है. इट इज अ टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर इन पाइथन. इट ऑलवेज, नोट डाउन करते जाओगे आप लोग, नहीं तो फिर बाद में वीडियो देखनी पड़ेगी. इट ऑलवेज enclosed within pair of curly brackets, that is this one and this one. This is called open curly braces and this one called close curly braces. Here, as it is designed for performing 2D data structure, ठीक है. तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको हमेशा पॉइंट आउट करना है. निखिल कैमरा बंद कर लो, जल्दी से बंद करो कैमरा. निखिल राज, स्विच ऑफ योर कैमरा. ठीक है. तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, whenever we work with dictionary we actually work with two dimensional data structure. Here two dimension means row and column, rows and columns are there. ठीक है, ऑलवेज ये क्या कैरी करता है? रो एंड कॉलम को कैरी करता है. अब इसको डिजाइन कैसे करते हैं? दैट मीन्स व्हाट शुड बी द
step, or we can say that what is the syntax of creating dictionary. It's very easy. Syntax is first one, variable name is equal to open curly braces, close curly braces, and within it we have to provide keys and along with its value. Basically, I use double quotation mark to identify it as a string type key and value. जैसे मान लो मुझे name store करनी है, then we have to create string type keys and string type value. But if it is required to store some values related to number or floating point, then we have to do the same, but here should be the changes. Variable name, देखो हमेशा याद रखना है, वेरिएबल नेम कैन नॉट कैरी एनी अंडरस्कोर, सॉरी स्पेस कैरेक्टर. क्लियर? इक्वल्स टू, अब यहाँ पे की मैंने लिखा, की ऑलवेज आप ट्राई करोगे कि वो हमारा स्ट्रिंग के फॉर्मेट में हो ताकि उसको कॉल करना आसान हो. अदरवाइज आप वैल्यू को जिस भी फॉर्मेट में रखना चाहो रख सकते हो. यू कैन हैव द वैल्यू लाइक दिस. एक सिंगल अगर वैल्यू हमें स्टोर करानी है तो, अगर मान लो इफ यू वांटेड टू हैव लिस्ट ऑफ वैल्यूज तो सेम थिंग है, बस इसको करना क्या होगा, इसको लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा. लाइक दिस वन, सॉरी, वैल्यू वैल्यू 1 कॉमा वैल्यू 2 कॉमा वैल्यू 3 टू वैल्यू n. तो ये कॉमन सिंटेक्स रूल है हमारे पास, सिंटेक्स कह सकते हो इसको, दैट एक्चुअली यूज टू आइडेंटिफाई और क्रिएट डिक्शनरी इन द पाइथन. अब इसके यूजेस क्या हो सकते हैं? एज फॉर एग्जांपल मान लो आई हैव 3 बेसिक fields like name, role, class. ठीक है? And all the data are stored in different places. That means different form. That means different column and rows. So whenever we needed to call it or create it inside a single packet data structure, then we have to use the term that actually is dictionary. ठीक है? अब इसका रियल टाइम एग्जांपल देख लो कैसे काम करता है. एग्जाम्पल इज वेरी सिंपल. जस्ट आई नीड टू क्रिएट, मान लो मुझे स्टूडेंट का नेम चाहिए, stud_name. मैं एक डेटा डिक्शनरी बना रहा हूँ दैट एक्चुअली कैरी नेम ऑफ द स्टूडेंट्स. ठीक है? तो आपको करना क्या है, जैसा कि रूल है, यू ऑलवेज हैव टू यूज पेयर ऑफ ओपन करली ब्रेसेस एंड क्लोज करली ब्रेसेस. सिंपली आप इसको करली ब्रेसेस कह सकते हो. हियर इज द नेम ऑफ द स्टूडेंट and now you are going to put some value for the student, like here is Gautam Kesari. ठीक है? तो गौतम केसरी मैंने यहाँ पे क्या किया, आइडेंटिफाई करा दी. and now if you wanted to print it, just you need to use stud_name. so then after you can print this value on the screen. same process you have to use for डिफरेंट काइंड ऑफ वैल्यूज और वेरिएबल्स. आपको जैसा भी काम करना है उस तरीके का यहाँ पे सिंटेक्स मैंने बना दिया है. तो 3 तरह के सिंटेक्स को आप यूज कर सकते हो. अगर आपके पास 1 वैल्यू है, आपके पास मल्टीपल वैल्यू है, या आपके पास कोई स्ट्रिंग वैल्यू है, तो 3 तरीके से यूज किया. जैसा मैंने लिटरल में बताया था कि 3 तरह से वैल्यू हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं. स्ट्रिंग, दैट इज कॉल्ड डबल वैल्यू विद डबल कोटेशन, सिंगल कोटेशन, कैरेक्टर, नंबर, फ्लोटिंग पॉइंट, और इवन ऑब्जेक्ट टू. अब मान लो एज फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे रोल कलेक्ट करना चाहता हूँ, stud_roll. ठीक है? तो रोल हमारे पास मान लो किसी एक पर्टिकुलर लिस्ट में पहले से अवेलेबल है. इट्स रोल, सॉरी, रोल. अब इसके वैल्यू जो हमारे स्टोर है वो किसी पर्टिकुलर लिस्ट में स्टोर है, तो मैंने दे दिया लिस्ट 1 या लिस्ट रोल लिस्ट. अब यहां से मैंने इसको पास कर दी तो ये डायरेक्टली वैल्यू को आइडेंटिफाई कर लेगा. अदरवाइज आप इसी चीज को इस तरीके से भी लिख सकते हो सेम प्रोसेस में. बस करना क्या होगा, यू नीड टू
कॉल द वैल्यू लाइक दिस वन, 1 2 3 4 5, इस तरीके से भी स्टोर कर सकते हो। ठीक है, यू कैन ऑल्सो यूज दिस वे। दैट मीन्स ये वेराइटी है, जितना आप वेराइटी इस्तेमाल करना चाहो आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये बेसिकली यहाँ पे इसके टर्म को हम लोग बोलेंगे सेट। ठीक है, ये हमारा कैसा है, वैल्यू विथ, इसको बोलेंगे हम लोग लिस्ट, क्योंकि यहाँ बिग ब्रैकेट का इस्तेमाल हो रहा है। अगर कर्ली ब्रेसेस का इस्तेमाल हो रहा है दैट मीन्स इट इज कॉल्ड सेट्स। ठीक है, अब ये क्या कॉन्सेप्ट है हम लोग आगे जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सॉरी बैक आ जाओ, इसका एक रियल टाइम एग्जांपल यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं, जो मैंने भी जस्ट आपको दिखाई है ऑन द स्क्रीन। यहाँ पे आइडेंटिफाई करो आप। फर्स्ट थिंग क्या है, डिक्स वेरिएबल है, मैंने सिंटेक्स बताई इसको। देन आफ्टर यू हैव टू कैरी its value and keys together. Name is the key, Zara is the value, age is the key, 7 is the value, class is the key, first is the value. So whenever you needed to have, then you can use these particular keys to identify or access its data. As for example, I wanted to have the name of this particular dictionary, then we have to use dict and then after this value. So basically dict is what, dict is the variable name of the of this particular dictionary. इसका रियल टाइम एग्जांपल हम लोग चेक करते हैं ये कैसे काम करेगा। हियर इज द प्रोग्राम एडिटर, जो काम करो डायरेक्टली एडिटर पे उसको रिट्राई करते रहो, कुछ ना कुछ रिफ्लेक्शन समझ में आते जाएगा। वेट कर लो, आ जा रहा है। हियर इज द आउटपुट। तो सेम प्रोसेस, मैं यहाँ पे इस पर्टिकुलर डिक्शन को बना रहा हूँ, dict डिक्स इज इक्वल टू डिक्स, बेसिकली यहाँ पे हमारा कीवर्ड भी है। ठीक है, अब इसको आइडेंटिफाई कराते हैं पर्टिकुलर वैल्यू से। ठीक है, तो मैंने यहाँ सबसे पहले वैल्यू आपको आइडेंटिफाई कराया, दैट एक्चुअली इज नेम। ठीक है, कोलोन एंड द वैल्यू, वैल्यू मीन्स कुमार सौरभ। ठीक है, आइडेंटिफाई हो गया, जस्ट क्लिक ओवर इट एंड प्रिंट dict। अगर मैं डायरेक्टली इसको देता हूं तो इट विल प्रोवाइड ऑल द डिटेल्स। अगर मुझे इंडिविजुअल चाहिए, मान लो कि इसमें कुछ और भी मैंने ऐड कर दी है, मैं सिर्फ ये नहीं रखना चाहता हूं, मैं इसके साथ साथ जैसे नेम रखा तो इसके साथ साथ मुझे चाहिए यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज। अब मान लो कि मुझे यहाँ पे रोल भी चाहिए कि इस पर्टिकुलर स्टूडेंट का रोल क्या है। ठीक है, तो रोल को आइडेंटिफाई करानी है, देन यू हैव टू पुट द वैल्यू, बट आपको ऑलवेज यहाँ कोलोन का इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट, इफ यू वांटेड टू स्टोर सेक्शन, सेम प्रोसेस, यू नीड टू यूज सिंगल कोटेशन मार्क, क्योंकि कैरेक्टर है ये। मान लो सेक्शन सी, अब मैंने इसको एंटर किया dict और एंटर, तो इसमें प्रिंट देने की जरूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्टली आप ये कॉल कर सकते हो, तो ये सारे वैल्यू कॉल हो जा रहे हैं। इफ आई वांटेड टू कॉल ओनली रोल, हाउ एक्चुअली यू कैन डू दैट, देखो यहाँ पे एग्जांपल भी दिया हुआ है नीचे में। तो आपको क्या करनी है, जस्ट यू नीड टू यूज डिक्स्ट एंड एरे ऑपरेटर के साथ उसका की का वैल्यू देना पड़ेगा। मान लो कि रोल, मुझे रोल चाहिए यहाँ से, तो ये सिर्फ रोल कॉल करके हमें प्रोवाइड कराएगा ऑन द स्क्रीन। सॉरी मैंने गलती कर दी, एक सिंगल कोटेशन मार्क दे दिया, डबल कोटेशन मार्क दे दिया, दैट एक्चुअली द प्रॉब्लम। तो देखिए रोल का सिर्फ डाटा दिखा रहा है। सेम प्रोसेस में अगर मैं यहाँ पे कॉल करूंगा कि आप मुझे सिर्फ और सिर्फ नेम बताओ, व्हाट आर द नेम स्टोर्ड इनसाइड द दिस पर्टिकुलर एरिया, तो नेम मान लो कि मैंने यहाँ पे नेम को कॉल कर दिया, तो ये नेम को कॉल करेगा सौरभ, लेकिन ये भी वन डायमेंशनल, इसमें अलग डेटा ऐड नहीं हुआ है। तो मैंने अभी क्या किया, मैंने ये एक रिकॉर्ड तैयार कर ली, अब इसी बेसिस पे मुझे आगे भी रिकॉर्ड्स बनानी है। तो सेम प्रोसेस के लिए आपके पास आगे आना पड़ेगा कि इसमें नेक्स्ट ऑपरेशन क्या कर सकते हैं। सबसे पहला ऑपरेशन कौन सा है हमारा, दैट इज कॉल्ड अपडेटिंग डिक्शनरी। जैसे हमारा डेटा पहले से क्रिएटेड है, ओके, नाउ यू वांटेड टू हैव सम न्यू एंट्रीज। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे देखो हमारे पास डेटा है एज, एज इक्वल टू 8 किया गया, जबकि एज इक्वल टू ऑलरेडी 7 है।
क्लास इक्वल टू फर्स्ट लिखा हुआ है, बट क्लास इक्वल टू सॉरी, एक नया इसमें डिक्शनरी ऐड कर रहे हैं हम लोग, दैट एक्चुअली स्कूल, स्कूल इक्वल टू डीपीएस, और उसका डाटा हमारे स्क्रीन पे यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, सेम प्रोसेस को करके देखो आप, यहाँ गया स्क्रीन, मैंने सेम को यहाँ पे अपडेट करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने दिया dict इज इक्वल टू, हाँ ऐसे किया जा सकता है, इक्वल टू नहीं होता है, एरे होता है ना, किस पार्टिकुलर वैल्यू के साथ काम करना है। मान लो कि यहाँ पे रोल है लिखा हुआ, ठीक है, एंड रोल इज गोइंग टू बी चेंज। अब मुझे रोल 1 नहीं, रोल नंबर 10 करना है इसको, जैसा यहाँ ऊपर भी किया गया है, एज इज इक्वल टू 8, एंटर की प्रेस किया, तो अभी कोई अपडेट दिखेगी नहीं। आपको अपडेट दिखाने के लिए आपको सिंपली dict लिख करके एंटर की प्रेस करो, देखो रोल नंबर अपडेट हो गया। काफी ज्यादा आसान है। ये फीचर आपके सेट में लिस्ट में अवेलेबल नहीं था, यहाँ अवेलेबल है। आप इस तरीके से डायरेक्ट कर सकते हो, यू डोंट नीड टू go for any updation method, just provide value to the given list, given value, given keys। ठीक है, नेक्स्ट अगर मुझे मान लो कि न्यू कोई फील्ड ऐड करनी है, मुझे यहाँ पे ऐड करनी है क्लास टीचर, क्लास टीचर, ठीक है, तो हु विल बी द क्लास टीचर, तो क्लास टीचर मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, क्लास टीचर कर दिया मैंने, मान लो गौतम सिन्हा, गौतम सिन्हा सर आपके क्लास टीचर होंगे। अब लो इसको ऐड किया और dict करके एंटर की प्रेस किया, देखो ऑटोमेटिक एक गौतम सिन्हा ऐड हो गया क्लास टीचर। तो ये काफ़ी ज़्यादा आसान है आपको डेटा को ऐड कराने के लिए, दैट मीन्स कि इसकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है, आप इसमें जो भी नंबर ऑफ चेंजेस करना चाहे वो डायरेक्ट कर सकते हैं, एंड इट इज़ पॉसिबल। चलो के बॉयज एंड गर्ल्स, जस्ट टेक अ स्नैपशॉट ऑफ इट एंड रेज योर हैंड, ताकि नेक्स्ट आगे पे काम किया जा सके। डू इट फास्ट। मैं क्वेरी पार्ट में आऊंगा, इस पे कैसे हम लोग क्वेरी करेंगे, कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे इसमें। नेक्स्ट पार्ट, अपडेशन भी सीख लिया। डिलीट के लिए क्या करना है, तो डिलीट करने के लिए आपके पास पाइथन में या यू कहो कि किसी भी लैंग्वेज में 2 से 3 तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका क्या है, जो आपका वेरिएबल का नेम है उसको लिखो एंड डॉट क्लियर, तो ये ऑटोमेटिक वो पूरा डेटा को क्लीन कर देता है। ठीक है, सेम प्रोसेस में डेल लिख करके आप काम कर सकते हो। डेल इक्वल टू पार्टिकुलर किसी वैल्यू, पार्टिकुलर किसी कीज को हटाना चाहते हो, जैसे आज फॉर एग्जांपल मैं यहाँ करता हूँ dict फॉर, मान लो मैं रोल हटाना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, मुझे सिंपली यहाँ पे डेल लिखनी है, डेल ऑफ डिक्शनरी रोल, रोल की है यहाँ पे, तो ये पार्टिकुलर की वैल्यू आइडेंटिफाई करेगा कि ये पार्टिकुलर की को रिमूव कर देना है। देखो रिमूव हो गया आपका। नेक्स्ट पॉइंट है इंटायर, अगर मुझे डिक्शनरी को क्लीन करनी है, आई वांट टू क्लीन ऑल द कीज एंड वैल्यू टुगेदर इनसाइड द डिक्शनरी, तो उसके लिए क्या करना होगा, सिंपली वेरिएबल का नाम डॉट एंड देन आफ्टर क्लियर एंड देन आफ्टर एंटर। अब इसको मैं डिक्स करूंगा, dict एंटर, तो यहाँ पे एक क्लीन दिखा रहा है, खाली दिखा रहा है, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी क्लीन द डिक्शनरी एलिमेंट टुगेदर इट्स कीज। अब जैसे एज फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे शो करना चाहता हूँ प्रिंट dict ऑफ सेक्शन, तो ट्राई करके देखते हैं कहीं आ जाए। तो ये बताएगा देयर इज नथिंग अवेलेबल लाइक सेक्शन, यहाँ पे की एरर आ रहा है, दैट मीन्स कि ये की जो आप आइडेंटिफाई कर रहे हो ये वहां है ही नहीं, इट इज अनअवेलेबल। ओके, अब मान लो कि पूरा का पूरा डिक्शनरी ही हटा देना चाहते हैं, मेमोरी लेवल से ही हटा देना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, डेल स्पेस dict एंड एंटर। अब अगर मैं dict लिखता हूँ एंड एंटर की प्रेस करता हूँ, it will gives you that it is just a class that is already existed in the programming world। तो ये काफी ज्यादा आसान है आपके लिए काम करने के लिए। तो इस तरीके से आप इसमें अल्टरेशन कर सकते हो, एडिशन कर सकते हो, क्या बोलते हैं, अपडेशन कर सकते हो, और न्यू क्रिएशन भी कर सकते हो। सो दीज आर द बेसिक फंक्शनैलिटी दैट कैन बी परफॉर्म इनसाइड द पाइथन डिक्शनरी। इसके अलावा बात करते हैं हम लोग अब इसके कीज की। अब जैसे एज फॉर एग्जांपल देयर इज अ नेम,
ठीक है, नेम कॉल किया एंड देन आफ्टर उसका नाम यहाँ पे आ गया, नाम क्या है यहाँ पे, मनी, तो मनी शो कर रहा है। सेम प्रोसेस यहाँ से आते हैं, अगर इसी कोड को आप देखो यहाँ पे इस पर्टिकुलर नेम को एक ब्रैकेट के अंदर लिखा गया है, दैट मीन्स आइडेंटिफाई किया गया है कि ये इम्यूटेबल है, दैट मीन्स आप इसको चेंज नहीं कर सकते हो। तो वैसे सेंस में जब आप इसके पर्टिकुलर वैल्यू को कॉल करोगे तो वो डाटा हमारा हैशेबल बताएगा। अनहैशेबल मीन्स होता है अनएक्सेसिबल। ठीक है, आई गॉट 4 रिस्पॉन्सेज फ्रॉम योर साइड। बोथ कीज एंड वैल्यू, नितिन नंदन का पढ़ रहा हूं मैं। बोथ कीज एंड वैल्यू आर यूजिंग कोटेशन मार्क, देन हाउ डू वी differentiate between keys and values? Okay, sir, your voice is vibrate, sorry, now we perfect. चलो कोई नहीं, ये होता रहेगा। देखो सबसे पहला नितिन, कहाँ गया नितिन, नितिन नितिन नंदन, अनम्यूट योरसेल्फ। यस सर। म्यूट मत करना जब तक ना बोलो। देखो सबसे पहली बात, वी हैव ओनली 10 मिनट। यहाँ से आते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है, देखो मैंने कहीं पे कॉल किया है या नहीं किया, चलो कोई नहीं, मैं यहाँ से कर देता हूँ। मान लो कि मुझे चाहिए स्टूडेंट नेम या स्टूडेंट, हाँ स्टूडेंट डिटेल, मैंने इसको एक बनाया है। अब इसमें मैं एक डाटा डालना चाहता हूँ दैट इज रिलेटेड टू स्टूडेंट नेम। ये मैंने नेम डाला, क्लियर। अब मैंने यहाँ पे नेम डाल दी है राजू, ठीक है। अब इसके बाद मुझे अगला डालना है दैट एक्चुअली इज रोल, क्योंकि रोल यहाँ पे हमारा स्ट्रिंग है, वर्ड है, तो हमें डबल कोटेशन मार्क में लिखना पड़ेगा। बट वैल्यू जो हमारा है वो हमारा नंबर में है, तो मुझे जरूरत नहीं इसको देने की। तो जहां भी जो रिक्वायर्ड है, समझ में आ रहा है नितिन, जहां भी जो चीज रिक्वायर्ड है, चाहे वो स्ट्रिंग हो, चाहे वो कैरेक्टर हो, चाहे फ्लोटिंग पॉइंट हो, आप उसको डायरेक्ट पुट कर सकते हो। यू आर फ्री टू इट, टू डू इट। नेक्स्ट पॉइंट, अब मान लो कि मैं इसको परसेंटेज देना चाहता हूँ कि कितना परसेंटेज आया इसको, तो मैंने दिया 35.67। अब इसके परसेंटेज है आगे। अब नाउ स्टूडेंट डिटेल्स, ये शो कर दिया। किसी इंडिविजुअल को अगर शो करना है, स्टूडेंट डिटेल्स, देन आफ्टर आई हैव टू पुट परसेंटेज। तो अगर मैं ऐसे वैल्यू डालूंगा तो कभी एक्सेसिबल नहीं हो पाएगा, बिकॉज इट इज ए स्ट्रिंग। तो ऑलवेज या तो आप सिंगल कोटेशन मार्क में इसको लिखो या फिर डबल कोटेशन मार्क में। क्लियर है, एंटर। तो ये कह रहा पर नाम से कोई है ही नहीं। एरर क्या है जल्दी बताओ। ई कैपिटल है। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा। देखो यही है, आपको अगर जितना जल्दी आप एरर को ढूंढ लोगे तो किसी भी समुंदर को पार कर जाओगे। आ गया, समझ में आ गया कॉन्सेप्ट ये। चलो नेक्स्ट यस क्वेरी। सर। नेक्स्ट बॉयज एंड गर्ल्स, आस्क मी इफ यू हैव एनी क्वेरी, टाइप इन योर चैट बॉक्स। मैं एक एक करके पढ़ूंगा, आपको आंसर करूंगा। मैं हर रोज यही बोलता हूँ, बट फिर भी आपकी तरफ से रिस्पॉन्सेज नहीं आते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। विकास कुमार, विकास अनम्यूट योरसेल्फ। यस सर। एनी प्रॉब्लम? टेल मी। नहीं सर, बट सर एक बार स्क्रीन शो करिए। वेट स्क्रीन शो वेट करिए। वेट 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 वेट, ये रहा। बोलो। सर बैकग्राउंड में जो उसमें प्रॉब्लम है सर, बैकग्राउंड का ये ले स्क्रीन। आ, क्या देखना चाहते हो आप? इस सर मनी के बाद जो ये क्या है, कॉलम लाइक। इसको बोलते हैं करली ब्रेसेस, ये वाली ना। नहीं, इसके उसके आप बात सर, उसके बाद ये उसका सेमी क्या वर्क कॉलन, है सर? ये यस, सेमी कॉलन है, सेमी उसका कॉलन वर्क है। क्या है? एक्चुअली देखो, लगता है तुमने प्रीवियस क्लासेस नहीं करी है। देखो सबसे पहली बात है कि किसी भी प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म पे काम करते हो तो उसके कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, ठीक है।
अब मैं हमेशा बोलता हूँ कि आई एम अ डॉट नेट प्रोग्रामर, मेरा जो स्पेशलाइजेशन है वो माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट पे है, लेकिन मैं जावा में भी प्रोग्रामिंग करता हूँ, मैं पीएचपी भी करता हूँ, मैं एजेक्स में भी करता हूँ, मैं सी प्लस प्लस यानी बहुत सारे लैंग्वेजेस पे काम करता हूँ और इजिली कर लेता हूँ। बिकॉज यहाँ पे एक चीज आपको हमेशा याद रखना होता है, दैट एक्चुअली इज द ग्रामर। हर एक लैंग्वेज का अपना अपना ग्रामर होता है, बस आपको ग्रामर के कॉमन थिंग को समझना है जिसको टोकेन्स कहते हैं, जो मैं उस दिन बता रहा था परसों। ठीक है। अब यहाँ पे रूल क्या है कि पाइथन हमारा सिंटेक्स लेस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सो वी डोंट हैव टू गिव एनी एडिशनल सिंटेक्स और वी कैन से दैट सिंटेक्स रूल वी हैव टू फॉलो। तो यहाँ पे जो सेमी कॉलन है वो अदर लैंग्वेजेस लाइक सी प्लस प्लस, जावा, या फिर आप अगर एएसपी में काम करते हो या किसी भी लैंग्वेज में काम करते हो अदर देन पाइथन, तो वहां पे क्या है, सेमीकोलन का यूज होता है टू आइडेंटिफाई द एंड ऑफ स्टेटमेंट। जैसे एज फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, ये हमारा क्या है, ये डिक्स का एंड ऑफ स्टेटमेंट है, लाइन एंड हो रहा है। अब ये डॉक्यूमेंट को जिस किसी ने भी लिखा होगा वो पक्का सी या सी प्लस प्लस का प्रोग्रामर होगा और पाइथन में ट्राई कर रहा होगा अपने आप को एक्सपर्टाइज करने के लिए। तो कभी कभी ये गलती हो जाती है, जैसे देखो यहाँ पे गलती हो गई क्योंकि हमारा पाइथन मल्टी प्लेटफॉर्म सपोर्ट करता है। अगर आप सी के प्रोग्रामर हो तो भी आप यहाँ काम कर सकते हो, अगर आप सी प्लस प्लस के प्रोग्रामर हो तो भी काम कर सकते हो, अगर आप जावा के प्रोग्रामर हो तो जावा के लिए भी काम कर सकते हो। हर एक के लिए अलग अलग यहाँ पे मॉड्यूल्स बने हुए हैं। जैसे मान लो सी प्रोग्रामर, तो सी प्रोग्रामर के लिए पाइथन में जो लाइब्रेरी बनी हुई है उसको बोलते हैं हम लोग साइथन, साइथन CYTHON, साइथन। अगर आप जावा के प्रोग्रामर हो, अगर पाइथन में काम करना चाहते हो तो देयर इज अ लाइब्रेरी दैट इज कॉल्ड जाइथन। ठीक है। नेक्स्ट, अगर आप Yes, मान sir. लो कि सी शार्प पे काम करना चाहते हो, आप अलग किसी और सॉफ्टवेयर में काम करना चाहते हो, तो हर एक प्लेटफॉर्म के लिए यहाँ पे वेलकम है, कोई भी आकर के किसी भी प्लेटफॉर्म से आकर के पाइथन में अपना काम कर सकता है। तो आप इसको इग्नोर कर दो बिकॉज यू आर अ पाइथन प्रोग्रामर। क्लियर? Okay. Yes, sir. म्यूट कर लो आप। अब मैं नेक्स्ट बात करता हूँ प्रेरणा भारती से। ऋषुराज ने कुछ लिखा है, सर की के प्लेस पर लिस्ट डाल सकते हैं? बिल्कुल नहीं, आप वहां पे वैल्यूज के पार्ट पे लिस्ट डाल सकते हैं, यू आर फ्री टू डू दैट। ठीक है, मैं इसको दिखाता हूँ आपको करके। ये रहा स्क्रीन, दिख रहा होगा मे बी। dict1 इक्वल्स टू, मैंने यहाँ दे दिया रोल्स। ठीक है, मुझे रोल स्टोर करानी है एंड हियर इज द वैल्यू 1, 2, 3, 4 दे दिया, देन आफ्टर क्लोज इट। ये कह रहा dict इज नॉट डिफाइंड, dict एरर नहीं, अच्छा सॉरी गलत लिख दिया है, dist1 लिखा हुआ है। देखो वैल्यूज स्टोर हो रहे हैं, लेकिन ऑलवेज याद रखो कि इसके अंदर जो भी वैल्यू स्टोर हो रहे हैं वो हमारा वन डायमेंशनल बन रहा है, एक ही वैल्यू पे इतना डेटा। अगर मान लो कि इसी में आपको अगर डेटा ऐड करानी है, अलग अलग आपको पुट करानी है अलग अलग पार्ट्स में, तो आप अलग अलग पार्ट में इसको ऐड करते जा सकते हो। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको अपेंड का यूज करना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है, अगर मान लो इसको वैल्यू को मैं शो कराना चाहता हूँ ऑन द स्क्रीन, कैसा दिखेगा ये, dict1 और ब्रैकेट में मैंने लिख दिया रोल एंड देन आफ्टर क्लोज इट, लेकिन ये काम नहीं करेगा बिकॉज वी हैव टू गिव सिंगल कोटेशन पेयर में एंड देन आफ्टर एंटर। देखो डेटा आपके सामने है, सो इट कैन बी पॉसिबल, काफी इजी है काम करना इसमें। आप एक दूसरे में कम्युनिकेट जैसे करते हो, जैसे मान लो कि मैं आपके साथ बैठ के पढ़ाई कर रहा हूँ, मेरी पेन खत्म हो गई तो मैं आपसे मांग लेता हूँ, मेरी बुक खत्म हो गई है दैट मीन्स कॉपी खत्म हो गई, मैं नितिन से मांग लूंगा, विकास से मांग लूंगा, निखिल से मांग लूंगा। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ प्रोग्रामिंग में ही होता है, जहां पे जिसकी जरूरत हो आप डायरेक्ट मांग सकते हो, यू कैन डायरेक्टली यूटिलाइज द रिसोर्सेस ऑफ अदर डेटा स्ट्रक्चर्स। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, प्रेरणा भारती अनम्यूट योरसेल्फ। Yes, sir. एनी प्रॉब्लम? Sir,
यस सर, वो स्क्रीन शेयर एक बार प्लीज। वेट कर दिया। सर इसमें जो आपने क्लियर ऑप्शन डॉट क्लियर का बता रहे थे उसमें वेरिएबल डालने को, तो अगर मैं किसी एक का ऐसे इसमें वेरिएबल में अगर कुमार सौरभ डालूंगी तो वो सिर्फ कुमार सौरभ को डिलीट करेगा? नहीं 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 नहीं, क्लियर इज अप्लाइड हियर फॉर एंटायर डिक्शनरी, पूरा का पूरा डिक्शनरी रिमूव करने के लिए है। अगर मान लो इंडिविजुअल किसी फील्ड को हटाना है, जैसे रोल फील्ड, यहाँ देखो तो मैंने क्या लिखा, डेल देन आफ्टर दिस वैल्यू, हट गया। Yes, अगर sir. अगर मान लो पूरा का पूरा डिक्शनरी ही डिलीट कर देना है, मेमोरी से हटा देना है, तो आपको क्या लिखना होगा, सिंपली आपको लिखना है डेल DICT, वो क्या करेगा, उसको कंप्लीट डिलीट कर देगा। यहाँ देख लो, ये सिर्फ ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी आपने लिस्ट में भी अप्लाई करी है, ठीक है। Yes, sir. चलो, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो लिखो वहां पे। नेक्स्ट इज, म्यूट कर लो आप। अगर कोई क्वेश्चन करना चाहते हो, रेज योर हैंड।